द सैडनेस इज कि उसकी एंट्री टिकट एक एम्प्लॉय की $100 मिलियन की हो गई है, जो यहाँ के पूरे पूरे राउंड होते हैं। और हमारे यहाँ के जो मतलब ग्लोबल टैलेंट है, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, वी कांट से कि भाई तुम्हें मैं कम दूंगा, इंडिया में हम बनाएंगे मॉडल, देश के लिए बनाएंगे, वो तो लॉजिकल चलेगा नहीं, बिकॉज द टैलेंट विल फाइंड द बेस्ट कॉस्ट एंड ऑप्टिमम। सो आई थिंक वी शुड नाउ सेटल फॉर that the generation that is happening, that we will be the use case capital, and I'm being very sad about it. Maybe we will build some SLMs, small language models, or some models that will be use case driven. जैसे कि हम लोगों ने कुछ अपने मॉडल बनाए हैं और उनकी बड़ी हॉरिजॉन्टल कंप्यूट मॉडल तो नहीं बन रहा है यहाँ से इंडिया से, मुझे ये समझ में आ चुका है, क्योंकि वो बार बहुत ऊंची हुई है। सो व्हेन यू से दैट हाउ डिड यू डिटेक्ट, इट्स अ वेरी लीनियर थ्योरी। अब मतलब आप मेरे को बोलो हम बात कर रहे हैं 2025 की या फिर 2014 की, हाउ विल द वर्ल्ड बी, तो कहूंगा कि कंपाउंडिंग में देख लेते हैं क्या बना है, उसके आगे की चीज बहुत लीनियरली दिख जाएगी। सो आपने जो किया वो भी यही है ना, जब इतने सारे सेलर आ गए तो उनको क्या चाहिए, लॉजिस्टिक्स बेचो। No, wonderful, and I love your thoughts on operating system. I think Shiprocket को भी हम in a way वैसे ही देखते हैं. I know a bit about Paytm, and I know you've also designed it on the top of Rails, right? Your system itself is modular. You can build things on top of it. It's not an application, right? It's a platform internally, right? And we are trying to build similar things at Shiprocket as well. So completely appreciate and understand. So आपने AI की बात करी, right? आपने इंडिया के अपने मॉडल्स की बात करी। आप मुझे पहले बताओ, at Paytm, right? What is new and buzzing at AI? I know you are a very hands-on product guy. I know it from many sources, and I know that आपको 100% exactly पता होगा कि कल रात को क्या live गया है and so on. But if you can tell us something and everybody in the audience and something exciting about AI at Paytm. Well, I think ये हम सब लोगों को समझ जाना चाहिए क्योंकि हम SMEs हैं इस कमरे में mostly. So one thing that we should know is lot of jobs that are done by humans will be done by AI. So I don't have to talk about customer care agents. Most of you know it. The important thing is to think of core business process. अगर आपका रिटर्न का प्रोसेस है वो AI हैंडल करे अपने आप ही, जिसमें ह्यूमन का जजमेंट ना हो, वो एक ट्रिकी मूवमेंट है। सो एक साइड में एफिशिएंसी चीजें हैं जो पेटीएम में हो रही हैं, और एक साइड में जो यूजर के लिए नई चीज बनानी है। सो आई मीन I'm a music buff. I love to listen to tons of music in the midst of work and everywhere. So I thought of it that how can we change some of the, it's very awkwardly boring to see various financial services transactions for yourself as a customer. आपको पासबुक देखनी पड़ती है, आपको डेबिट क्रेडिट का रिव्यू करना पड़ता है, तो how can we make it a little more fun? So हम लोगों ने कुछ सोचा कि नई जनरेशन के जो लोग होते हैं जिनको पासबुक का वर्ड भी नहीं मालूम, एक्चुअली इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि देयर इज नॉट इवन अ वर्ड कॉल्ड पासबुक एक्जिस्टेंस फिजिकल बिफोर, राइट? दैट्स व्हाई आई मीन कुछ लोग तो ये सोचते होंगे कि ये पासबुक का मतलब क्या है, इसमें बुक में पासवर्ड रखे हुए हैं क्या, या फिर पास है जो मेरे बोर्डिंग पास है वो इसमें रखे हुए हैं, and it's very awkward. So we thought that how can we rewrite the passbook itself? Wow. If you were to rewrite passbook for a Gen Z dude, and to do that we went through all kind of avatars. Like I told you that we, being a music buff, so we now are right now piloting a passbook that will be sending you a rap song of your last month expenditure based on your expenditure. तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ. Nice, guys are getting a free preview here. This is completely, so what I'm showing you right now is completely, अब यहाँ पे आपको सुनाई देगा सिर्फ, I'm not going to say कि आपको दिख रहा होगा, but this is a passbook का music that you will play. So this is इन अ मंथ आपको जो PDF आती है जिसमें आप पासबुक देखते हो, एक्सेल शीट देखते हो, उसकी जगह पे ये सॉन्ग आएगा आपके पास जो आपके लिए आपके खर्चे के बेसिस पे स्पेंड होगा। सो इट विल स्पीक एवरीथिंग जनरेटेड बेस्ड ऑन योर स्पेंड। ओके, सो ये लाइव रियल टाइम में बना रहा है, राइटिंग द लिरिक्स एज यू कैन सी। सुमित तू फिर से ज्यादा उड़ाया, सुबह की शुरुआत आईडीसी किचन से चाय, कांति स्वीट्स खाया, हाई टू फुल हाई, रामेश्वरम कैफे डोसा का क्रेज, स्विगी पे ऑर्डर मिडनाइट ब्लेज। तो ये क्या देख रहा है कि आप रामेश्वरम कैफे में जा रहे हो, स्विगी पे मिडनाइट ब्लेज कर रहे हो। सो दिस इज द एआई जनरेटर दैट इज जनरेटिंग अ लिरिक एंड जनरेटिंग अ म्यूजिक एंड जनरेटिंग अ हिप हॉप। अब मैं इसको गजल भी बना सकता हूँ, हिप हॉप भी बना सकता हूँ, पॉप सॉन्ग भी बना सकता हूँ। सो वी विल लॉन्च इट टू द कंज्यूमर्स एज अ हिप हॉप वर्जन ऑफ योर पासबुक। अमेजिंग।